Hello students, today we are doing the first chapter from the book First Flight. The name of the chapter is A Letter to God, written by G.L. Fuentes. In this chapter, we will read about a person, Lancho, who is a farmer and who has deep faith in God. It can be described as superstition also, because he is writing a letter to God as well, and whatever happened in the last, we will discuss it after that. What type of a faith is this? So we are starting this chapter. We are starting reading this chapter here. The house, the only one in the entire valley, sat on the crest of a low hill. This is the house of Lancho, and it is the only one house in the entire valley. पूरी वैली में ये एक अकेला हाउस है, and it is on the crest of a low hill. एक छोटी सी हिल है, उसके टॉप पे ये बना हुआ है. From this height, one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. So यहाँ पे इस घर से, इस हाइट से कोई भी पर्सन रिवर्स को देख सकता है, कॉर्न फील्ड्स को देख सकता है, एंड कॉर्न फील्ड्स के जो फ्लावर्स हैं दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट. इट मीन्स द हार्वेस्ट इज गुड. जो मतलब एक अच्छी फसल की निशानी होती है. सो दैट इज easily told from there, seen from there. The only thing the earth needed was a downpour or at least a shower. कि सिर्फ अब इस फसल को किस चीज़ की नीड है? डाउनपोर और एटलीस्ट अ शावर, एक अच्छी सी बारिश की, या इससे थोड़ा सा कम हो चलेगा, बट बारिश की नीड है. Throughout the morning, Lancho, who knew his fields intimately, had done nothing else but see the sky towards the north east. और सुबह से लैंचो जो बैठा है, जो अपने फील्ड्स को इंटीमेटली बहुत अच्छे से जानता है. यहाँ इस लाइन का क्या मीनिंग है कि कब किस टाइम उसकी फसल को पानी की नीड है, किस टाइम किस चीज़ की नीड है. ही न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, बहुत अच्छे से. नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, वुमन. ही इज़ सेइंग दिस टू हिज वाइफ कि अब हमारी फसल को पानी मिल जाएगा. द वुमन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर replied, yes, God willing. The older boys were working in the field while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all. जो बड़े बच्चे थे इनके, वो खेत में फील्ड्स में काम कर रहे थे. they were working in the fields. और the smaller ones, जो छोटे बच्चे थे, they were playing near the house. And the lady, Lancho's wife, called them for dinner. Come for dinner. It was during the meal that, just as Lancho had predicted, big drops of rain began to fall. और जैसे ही लैंचो ने गेस किया था, प्रेडिक्शन की थी, प्रेडिक्शन मीन्स गेस करना. सो एज अकॉर्डिंग टू दैट, जब वो खाना खा रहे थे तो बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगैन टू फॉल. इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग. बड़े बड़े बादल जो थे नॉर्थ ईस्ट की तरफ जो थे दिखाई देने स्टार्ट हो गए. द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट. The man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body. और मतलब वो सिर्फ किस लिए गया, उसे कुछ और रीज़न नहीं था बाहर जाने का. He wants to enjoy the rain. He wants to feel that pleasure of the rain drops on his body. वो उस बारिश को अपने ऊपर, अपनी बॉडी पर फील करना चाहता. That's why he went outside. And when he returned, he exclaimed, these aren't raindrops falling from the sky. They are न्यू क्वाइंस. कि ये बारिश नहीं है, ये न्यू क्वाइंस हैं. द बिग ड्रॉप्स आर 10% सैंड पीसेस एंड द लिटल वंस आर 5. कि बिग ड्रॉप्स जो हैं 10 सैंड पीसेस के हैं, जस्ट लाइक, एंड द लिटल वंस आर जस्ट लाइक 5 सैंड पीसेस. यहाँ पे इस लाइन का क्या मतलब है? इस लाइन का मतलब ये है कि वो हमें प्रॉफिट देंगे इतना. कि बिग ड्रॉप्स अगर होती हैं, अच्छी बारिश, तेज मोटी बूंदें आ रही हैं, तो वो इतना ज़्यादा प्रॉफिट देंगी, कम आ रही हैं तो कम देंगी. विद ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर्स ड्रेप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन. और बड़े ही सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन के साथ
He was very much satisfied because of these rains, and he regarded the field of ripe corn with its flowers draped in a curtain of rain. Draped in a curtain of rain means covered. Draped वैसे तो होता है पर्दा गिरा हुआ. So यहाँ पे मतलब ये है कि बारिश का पर्दा जो पड़ा हुआ था राइप कॉर्न्स पे, पूरी बारिश चल रही थी. But suddenly he was very much happy with these rains. But suddenly a strong wind began to blow, and along with the rain, very large hailstones began to fall. अभी तक तो वो बहुत खुश था कि बारिश हो रही है, बट इसी के साथ ही साथ क्या हुआ, स्ट्रॉन्ग विंड्स चलने लगी और उसी के साथ बड़े बड़े हेल स्टोन्स जो होते हैं. हेल स्टोन्स क्या होते हैं? ओले, बर्फ़ के जो गिरते हैं, ओले बोला जाता है इनको, स्टोन्स बोला जाता है. दिस ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स. और ये तो रियलिटी में सिल्वर कॉइन्स की तरह दिख रहे थे. जब हेल स्टोन्स गिर रहे होते हैं तो वो जस्ट लाइक पर्ल्स यू कैन से. द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू रेन रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स. और बच्चे भी जो थे इन फ्रोजन पर्ल्स को, मोतियों को, मोती टाइप जो हेल स्टोन्स होते हैं उनको उठाने के लिए भागे. इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम द मैन. आई होप इट पासिस क्विकली. एंड नाउ द मैन वॉज वरीड, लैंचो वॉज वरीड कि हेल स्टोन से जो है उसकी फसल ख़राब हो जाएगी. आई होप इट पासिस क्विकली, कि जल्दी ही ख़त्म हो जाए, एंड अप हो जाए ये हेल स्टोन्स गिरना. बट इट डिड नॉट पास क्विकली. For an hour, the hail rained on the house, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley. पूरा हेल स्टोन्स जो थे वो 1 hour तक गिरते रहे. The field was white as if covered with salt. जैसे पूरी salt से, नमक से भर गई हो फील्ड, ऐसे लग रही थी. Not a leaf remained on the trees. The corn was totally destroyed. The flowers were gone from the plants. Lancho's soul was filled with sadness. इस hailstones की वजह से सारे फ्लावर डिस्ट्रॉय हो गए, फसल डिस्ट्रॉय हो गई उसकी. And he was very much sad now. When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons, "A plague of locusts would have left more than this." Locust होते हैं जो कीट पतंगे होते हैं, जो टिड्डियाँ होती हैं, कि ये कहता है कि अगर वो अटैक करती ना तो वो भी थोड़ी सी फसल तो छोड़ देती, लेकिन हम इन हेल स्टोन्स ने बिल्कुल भी कुछ भी नहीं छोड़ा. द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग. दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न. इस साल हमें बिल्कुल भी कॉर्न्स, मक्की नहीं मिलेगी. दैट नाइट वॉज अ सॉरोफुल वन. बहुत दुख में वो रात उनकी निकली. ऑल आर वर्क फॉर नथिंग. वी हैव डन सो मच वर्क, वी हैव डन सो मच हार्ड वर्क, बट फॉर नथिंग, कि कुछ भी उसका रिजल्ट हमें नहीं मिला है. डज नो वन हु कैन हेल्प अस. वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर. बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली देयर वॉज अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड. कि ये जो इस सॉलिटरी हाउस में रहते हैं, सॉलिटरी मीन्स जो सुनसान है, अकेला, मतलब सॉलिटरी मीन्स अकेला, नॉट सुनसान, अकेला घर है जो पूरे एरिया में, वैली में. उस अकेले घर में एक सिंगल होप अभी भी उन लोगों में थी जो वहाँ रहते थे. दैट होप वॉज हेल्प फ्रॉम गॉड. डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस. रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर. सो दे आर टॉकिंग अबाउट कि कोई भी भूख से नहीं मरता. दैट्स व्हाट दे से. हु से? ये दे कौन है? जो इनके एल्डर्स थे. नो वन डाइज ऑफ हंगर. दे आर डिस्कसिंग कि इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, बेशक सारा लॉस दिख रहा है बट फिर भी कोई भूख से नहीं मरता. All through the night, Lancho thought only of his only one hope, the help of God, whose eyes had, as he had been instructed, see everything, even what is deep in one's conscience. So वो कहता है, Lancho is saying कि बेशक सब कुछ ख़त्म हो गया है, लेकिन वो अभी भी अपने एक होप के बारे में सोच रहे, द हेल्प ऑफ गॉड, जिनकी आइज़, जैसे कि हमें बताया गया है, वो सब कुछ देखती हैं. गॉड की आइज़ सब कुछ देखती हैं. इवन व्हाट इज़ डीप इन वंस कॉन्शियंस, जो हमारे दिल में भी है, जो हमारे अंदर बसा हुआ है, छिपा हुआ है, गॉड की आइज़ वो भी देख लेती हैं. लैंचो वाज एन ऑक्स ऑफ अ मैन. ऑक्स ऑफ अ मैन का क्या मतलब होता है? ऑक्स सिंपल मीनिंग है बैल, और यहाँ पे भी मतलब वही है कि एक बैल की तरह काम करने वाला. इट मीन्स हार्ड वर्किंग पर्सन. ही वॉज अ वेरी हार्ड वर्किंग फार्मर, वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स. और इसको दोनों तरह से हम ले सकते हैं कि हार्ड वर्किंग भी है, जैसे ऑक्स जो है हार्ड वर्किंग होता है, और ऑक्स जो है उसका एक तरह से कम दिमाग का बताया जाता है. बट स्टिल यहाँ पे ये बोला जा रहा है, बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट. लैंचो वॉज वेरी हार्ड वर्किंग लाइक एन ऑक्स.
बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन वो लिटरेट था, उसको पढ़ना लिखना आता था. द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक, नेक्स्ट संडे जो आया और सुबह के टाइम, ही बिगैन टू राइट अ लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल. उसने लेटर स्टार्ट किया सो दैट ही कुड प्लेस इट इन द मेल बॉक्स में ही डाल सके. एंड वट वॉज द लेटर अबाउट? इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड. ही हैड रिटन दिस लेटर टू गॉड. God, he wrote, if you don't help me, my family and I will go hungry this year. I need 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes because the hailstorm. He is writing this letter और God को वो लिख रहे हैं कि अगर आपने हमारी हेल्प नहीं की तो we will go hungry this year. And he wrote that he wanted 100 pesos so that he could sow his fields again. कि अगली फसल आने तक हमें ये पैसे चाहिए कि हम फसल लगा सकें. उसके ऊपर उसने एड्रेस लिखा. ही रॉट टू गॉड ऑन द एनवेलप, गॉड का नाम लिखा. पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल्ड, अभी भी वो वरीड है. ही वेंट टू टाउन एट द पोस्ट ऑफिस. ही प्लेस्ड द स्टैम्प ऑन द लेटर, स्टैम्प लगाई उसने पोस्ट ऑफिस में और ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स. मेल बॉक्स में उसे डाल दिया. नाउ जब मेल बॉक्स में डाला जाता है तो एम्प्लॉयज़ जो हैं पोस्ट ऑफिस के, वो उस लेटर्स को उस पर स्टैम्प्स लगाई जाती हैं कि अगर मान लो कोई कहीं का लेटर है, अगर मान लो कोई करनाल का लेटर है, दिल्ली का लेटर है, तो वो दिल्ली की साइड जो पोस्टमैन जा रहा होगा उसको दिया जाएगा. और जो चंडीगढ़ की साइड है, मान लो कोई लेटर चंडीगढ़ के लिए गया है, तो वो चंडीगढ़ वाला जो पर्सन होगा जो जिसकी ड्यूटी उस साइड लगी हुई है तो उसको दिया जाएगा. सो उस पर स्टैम्प्स लगाए जाते हैं एंड दैट लेटर्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड. उन लेटर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है. सो हेयर ऑल्सो वन ऑफ द एम्प्लॉयज़ हु वाज अ पोस्टमैन एंड ऑल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हर्टिली एंड शॉड इन द लेटर टू गॉड. सो एक एम्प्लॉय जो वहाँ पे वर्कर था, काम करने वाला, उसने वो लेटर देखा एंड उसने वो हंसता हुआ गया एंड उसने वो लेटर जो था औरों को दिखाया. नेवर इन हिज कैरियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस. द पोस्ट मास्टर, अब उसने पोस्ट मास्टर को दिखाया ये. द पोस्ट मास्टर अ फैट एमिएबल फेलो. एमिएबल होता है फ्रेंडली, बड़ा मतलब अच्छा, सबसे जॉकिंगली बात जो करता है, फ्रेंडली पर्सन. द पोस्ट मास्टर ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग but almost immediately he turned serious and tapping the letter on his desk commented, what faith? I wish I had the faith of the man who wrote this letter, starting up a correspondence with God. कि काश मुझे भी, मेरे अंदर भी इतना फेथ होता जितना इस पर्सन के अंदर है जिसने ये लेटर लिखा है. ये तो डायरेक्ट गॉड से कॉरस्पॉन्डेंस स्टार्ट कर रहा है, डायरेक्ट कन्वर्सेशन स्टार्ट कर रहा है गॉड से. इतना फेथ है इस पर्सन का. सो इन ऑर्डर टू not to shake the writer's faith in God, the postmaster came up with an idea, answer the letter. So वो नहीं चाहता कि उस पर्सन का फेथ जो है शेकअप हो जाए, ख़त्म हो जाए, तो उसने पोस्टमास्टर को एक आइडिया आया कि he would answer the letter. But when he opened it, it was evident that to answer it he needed something more than goodwill, ink and paper. अब इसको जब इसने लेटर खोला और पढ़ा तो इसको समझ में आया कि खाली गुडविल नहीं चाहिए, कि जो गुडविल मीन्स कि जो हमारा कंसर्न है इस पर्सन के लिए, सिर्फ उससे काम नहीं चलेगा. और खाली इंक और पेपर से किया मैं आंसर कर दूं, इससे काम नहीं चलेगा. भाई मैंने राइट बैक कर दिया, नो. उसके अलावा उनको क्या चाहिए? पैसे चाहिए. 100 pesos दैट आर डिमांडेड बाय लैंचो. स्टिल बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन. लेकिन पोस्ट मास्टर ने जो रेजोल्यूशन ले लिया था, जो प्रॉमिस किया था अपने आप से कि मैं इसकी हेल्प करूँगा, तो वो उसके ऊपर स्टकअप रहा. ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़. उसने अपने एम्प्लॉयज़ से बोला कि जितने तुम डोनेट कर सकते हो तुम करो. ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी. उसने अपनी सैलरी का भी कुछ हिस्सा दिया, पार्ट दिया. एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ऑब्लाइज टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी. उसके फ्रेंड्स ने भी, जिनसे उसने बात की, उन फ्रेंड्स ने भी फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, एक तरह से दान के लिए जो कुछ उनसे बन सकता था, दे ऑल्सो गेव. It was all impossible for him to gather together the 100 pesos, but he could not gather 100 pesos. पूरे 100 pesos तो वो कलेक्ट नहीं कर पाया. So he was able to send the farmer only a little more than half. हाफ से कुछ ज़्यादा वो कलेक्ट कर पाया था. So उसने वो सेंड किए. He put the money in envelope addressed to Lancho. एनवेलप में डाले पैसे एंड विद इट अ लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज अ सिग्नेचर गॉड. और गॉड की तरफ से सिग्नेचर कर दिए. इट मीन्स द लेटर वाज सेंट बाय गॉड. The following Sunday, Lancho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. Now next Sunday जो है Lancho आया
पूछने के लिए कि कोई मेरे लिए लेटर आया है. इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम. पोस्टमैन ने उसको लेटर पकड़ाया, और जो पोस्टमैन जो वहाँ पे काम कर रहा था, और जो लेटर ही लेकर पोस्ट मास्टर के पास गया था. और जो पोस्ट मास्टर है वो विंडो में से देख रहा है, एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट ऑफ अ मैन हु हैज़ परफॉर्म्ड गुड डीड लुक्ड फ्रॉम हिज ऑफिस. वो अपने ऑफिस से पोस्ट मास्टर जो है बड़े सेटिस्फाइड मोड में उसको देख रहा है. वाई ही वॉज सेटिस्फाइड? बिकॉज उसको कंटेंटमेंट है, उसको सेटिस्फैक्शन है दैट ही हैड डन समथिंग गुड by helping this person, Lancho. But Lancho showed not the slightest surprise on seeing the money. Lancho को कोई सरप्राइज नहीं हुआ पैसे देख के. क्यों नहीं हुआ? Because he was having a great confidence in God. Such was his confidence. But he became angry when he counted the money. Now why was he angry? Because the money was less as he had demanded. He had demanded 100 pesos, but the money was not 100. God could not have made a mistake, nor could he have denied Lancho what he had requested. कि गॉड तो ऐसी गलती नहीं कर सकते, और वो लैंचो को डिनाई भी नहीं कर सकते, मना भी नहीं कर सकते लैंचो ने किस चीज़ के लिए रिक्वेस्ट की है. तो किसकी गलती है ये? इमीडिएटली लैंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंडिंग. और उसने लैंचो उसी टाइम विंडो पे गया, पोस्ट ऑफिस विंडो पे गया, उसने पेपर एंड इंक मांगे, और वहीं पर ही ना पब्लिक राइटिंग टेबल बनी होते हैं, वहाँ पर बैठकर वो लेटर लिखने लगा टू गॉड. ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो. रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो मीन्स कि उसके माथे पर त्योरियाँ चढ़ी हुई हैं, जैसे गुस्से में वो सोच के बड़ा परेशान होकर लिख रहे हैं. कॉज्ड बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज़. कि अब मैं क्या लिखूँ? तो उस सोचने के लिए उसको उसके आईब्रोज जो थी वो रिंकलिंग त्योरियाँ चढ़ गई थी उसकी. When he finished, he went to the window to buy a stamp, which he licked and then affixed to the envelope with a blow of his fist. और उसने बस उसको लिकअप किया, और उसको मुक्के से ही उसने अपने ब्लो ऑफ अ फिस्ट, अपने मुक्के से ही उसने उसको एनवेलप को बंद किया. The moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it. और जैसे उसने when he just throw it into the mailbox, उसी टाइम पोस्ट मास्टर जो था मेल बॉक्स से उसे निकालने के लिए चला गया. इट सैड, और उसने जब पढ़ा, बिकॉज दे वर वेरी मच एक्साइटेड टू जस्ट रीड द लेटर, एंड दे वर थिंकिंग दैट इट वॉज अ थैंकिंग लेटर. कि उसने ज़रूर थैंक्स लिखा होगा कि मुझे पैसा मिल गया है. तो पोस्ट मास्टर को यह लग रहा था, तो वो ये रीड करना चाहते थे. बट इन दैट वट वॉज रिटर्न? इट सैड, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 pesos रीच्ड मी. उसमें क्या लिखा हुआ था गॉड को कि गॉड, मैंने तो 100 पैसे मांगे थे, बट इसमें सिर्फ 70 पैसेज मुझे मिले हैं. सेंड मी द रेस्ट, मुझे बाकी भेजो, सिंस आई नीड इट वेरी मच, बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर अ बंच ऑफ क्रुक्स. लैंचो. तो उसने क्या लिखा है कि मेल बॉक्स के थ्रू मत भेजना, डायरेक्टली भेजना, बिकॉज यहाँ पे जो है जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ है, पोस्ट ऑफिस में काम करने वाले जो हैं, दे आर अ बंच ऑफ क्रुक्स. बंच ऑफ क्रुक्स का मतलब क्या है? वो ठग हैं, वो उन्होंने मेरा पैसा ठग लिया है, उन्होंने मेरा पैसा चुरा लिया है. सो दे आर crooks, so don't send me the money through mail. This is written by Lancho. The chapter is complete here, and now this is an easy chapter, but at last we want to discuss about that कि जो Lancho का फेद है, is it good here that he was just blaming those people, those post office employees who are helping him by sending the money, कि वो उसको पैसा भेज रहे हैं और वो अपनी तरफ से हेल्प कर रहे हैं. दे डोंट वांट एनी शो ऑफ, कोई शो ऑफ भी नहीं उन्होंने किया है, बट स्टिल लैंचो उन्हीं को ही ब्लेम कर रहा है दैट दे आर द क्रुक्स हेयर. और इतना ज़्यादा उसका गॉड में फेद है दैट हैज़ बिकम अ सुपरस्टिशन. वो एक अंधविश्वास बन चुका है जो उसी के लिए ही लॉस कर रहा है, उसी को लॉस दे रहा है. सो it is not good. So much of faith is also not good. God helps those who help themselves. It is a great saying here. We know that कि God उन्हीं की हेल्प करेगा जो अपनी हेल्प खुद करेंगे. यहाँ पे तो वो हेल्प तो क्या, he is just saying this post office employees just as a crooks, कि वो उनको crooks कह रहा है. कम से कम एक थैंक्स उनको होना चाहिए था कि जस्ट हो सकता है कि गॉड ने उन्हीं के थ्रू ही हेल्प की हो इसकी. सो हेयर we come to know that this Lancho's faith is
एज कंपेयर्ड इट इज़ कंपेरेबल टू द सुपरस्टिशन. सुपरस्टिशन बनता जा रहा है इसका फेथ, दैट इज़ नॉट गुड फॉर वी पीपल. हम लोगों के लिए अगर मान लो हम इतना फेथ करते हैं, इस तरह का फेथ करते हैं, तो ये हम लोगों के लिए अच्छा नहीं है. सो द चैप्टर इज कंप्लीट एंड आई होप you have all understood this chapter very well. Have a nice day.